Welcome to all of you. In this video, we are going to discuss about how to draw orthographic views of an given object. The object is given here on the screen. You can observe it is a very basic object with some dimensions, and we have to draw the orthographic views. Means we have to draw the front view, top view, and respective side view. So in this video, we are going to discuss step-by-step procedure how to draw the orthographic projection of the given object. In simple word, it is nothing but conversion of 3D view into 2D. Okay, so let's see what is the object and how to draw the views of it. We can observe here. Okay, so the very first, the question will be given like this. The isometric view of an object is given in the question. Draw its front view, top view, and left hand side view of the given object. So given object is represented in the line form. There are no surfaces are represented with some measurements, some dimensions are given, and with one arrow mark. That arrow mark is always indicating we have to observe the object from this direction, and we have to create the front view always from the direction of arrow. Only one arrow will be given in the isometric view. That arrow is always for drawing the front view. Then when we are going to draw the particular top view, means we have to observe from this direction, from the top side we have to observe, and whatever may be the visible portion is there, that we have to represent on the horizontal plane. Then by looking from the direction of arrow, the left side portion of the object is visible, which is from the left side, means we have to observe from this side, and the left hand side view of this object is possible to create here. In some question they will mention draw the respective side view of the object. So in that case we have to decide whether left hand side view is possible or right hand side view. And how to decide that? Just imagine we are observing the object from the direction of arrow, and from this direction the left side of the object is easily possible to observe. So here the left hand side view is possible to draw. Means while looking from the direction of arrow, जो साइड हमें विजिबल होगा लेफ्ट या राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमें ऑब्जर्व करना है. तो इस क्वेश्चन के अंदर जब हम एरो मार्क के डायरेक्शन से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लेफ्ट वाला पोर्शन इजीली पॉसिबल है ऑब्जर्व करने के लिए. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, और ये कब अप्लाई करना है? जब क्वेश्चन में मेंशन किया होगा ड्रॉ द रिस्पेक्टिव one of the side view. Okay, so let's see step by step procedure to solve the numerical. So very first step, we have to observe the object properly. What is the structure of the object? What are the dimensions are given? So here you can observe the respective three views that we have to create, and always remember हर एक व्यू के अंदर हमें दो डायमेंशंस पता चलते हैं. ओके, जैसे कि हम एरो मार्क के डायरेक्शन से अगर देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, और फ्रंट व्यू के अंदर हमें दो डायमेंशंस लेंथ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेंथ मीन्स हॉरिजॉन्टल डायमेंशन फ्रॉम द एरो इज ऑलवेज द लेंथ, एंड वर्टिकल डायमेंशन इज द हाइट. तो यहाँ पे लेंथ हो गया 70 mm, हाइट हो गया 50 mm. देन टॉप व्यू से हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट पता चलता है. टॉप व्यू मतलब हम इस साइड से देखेंगे तो लेंथ as it is 70 mm और width of the object is given here, that is 15 mm. okay, and जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो हमें हाइट और विड्थ पता चलता है. साइड व्यू मतलब हमें लेफ्ट साइड से देखना है, तो यहाँ पे हाइट 50 mm और विड्थ ऑब्जेक्ट का 15 mm. ओके, सो ये तीन डायमेंशन हमें पता चलते हैं. सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन x y ड्रॉ करना है. देन सेकंड रेफरेंस लाइन x1 y1 जो कि उसको परपेंडिकुलर होगा. इट विल क्रिएट द 4 क्वाड्रेंट. यहाँ पे देखिए 4 क्वाड्रेंट क्रिएट होते हैं, और हमें जो तीन व्यूज ड्रॉ करने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू. तो हमें यहाँ पे जस्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का पोजीशन फाइनल करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ. ओके, और वो कैसे करना है? जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्रिएट होता है फ्रंट व्यू के राइट साइड में. तो राइट साइड में फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्रिएट होगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड व्यू का इमेज क्रिएट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू क्रिएट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू क्रिएट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करना होता है जो हमें प्रोजेक्शन लेने के लिए यूजफुल होगा. तो सबसे पहले स्टेप होती है दो रेफरेंस लाइन विच विल क्रिएट द 4 क्वाड्रेंट. और जैसे अपना फाइनल पोजीशन हो जाएगा फ्रंट व्यू कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, साइड व्यू कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो जो वन ऑफ द क्वाड्रेंट के अंदर हमें एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करना होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रेफरेंस लाइन. ओके, देन जैसे हमें यहाँ पे पता है कि फ्रंट व्यू के अंदर हमें लेंथ एंड हाइट पता चलता है. फ्रंट व्यू का डायरेक्शन ऑलवेज एरो मार्क के डायरेक्शन से देखना है.
तो लेंथ हो गया 70, हाइट हो गया 50, तो हमें उसका आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है। तो उस आउटलाइन बॉक्स के अंदर ही अपना फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे लेंथ है, यू कैन ऑब्जर्व हियर 70 mm लेंथ, और इसका हाइट जो है 50 mm, उसका हमें एक आउटलाइन बॉक्स करना है विथ प्रोजेक्शन लाइन विच इज लाइट इन शेड। और उसके अंदर जो फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल एजेस, विजिबल स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्लॉट है, जहाँ पे सर्कुलर होल होगा, उस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमें ये वाला पोर्शन जो सी अल्फाबेट जैसा अपवर्ड डायरेक्शन से सी अल्फाबेट जैसा स्ट्रक्चर विजिबल हो रहा है, जहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन, बॉटम में हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट साइड में वर्टिकल, टॉप में 20 mm का एक्चुअल में इंक्लाइन है, बट जब हम 2D ड्रॉ करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद डाउन साइड या डेप्थ 20 mm, देन इस पोर्शन का हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। देन हाइट अगेन 20, यहाँ पे इस साइड में डायमेंशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन ऐसा होता है, एजम्पशन होता है कि जितना डेप्थ यहाँ पे 20 है उतना ही यहाँ पे डेप्थ होगा 20, और यहाँ पे इस लाइन का हमें मेजरमेंट दिया है 20। ओके, सो ओवरऑल लेंथ है 70, लेफ्ट साइड से 20, राइट साइड से 20, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे बीच वाला जो पोर्शन है 30 mm का। तो इस टाइप के कुछ कैलकुलेशन करके हमें कुछ पोर्शन का हमें मेजरमेंट या लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो विजिबल स्ट्रक्चर है जैसा सी अल्फाबेट जैसा, हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट व्यू के अंदर लेफ्ट साइड वाला एज 50 mm हाइट का, देन बॉटम का 70 mm यहाँ पे लाइन विजिबल है, देन राइट साइड वाला वर्टिकल लाइन 50, देन यहाँ पे टॉप में 20 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन, देन 20 mm डेप्थ डाउनवर्ड साइड, देन 30 mm मिडल पोर्शन, देन 20 mm अपवर्ड, एंड लास्ट 20 mm हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया सी अल्फाबेट जैसा विजिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। ये हो गया अपना फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर। देन टॉप व्यू जब हम क्रिएट करते हैं, टॉप व्यू में हमें लेंथ और विड्थ पता चलता है, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमने लेंथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो लेंथ का प्रोजेक्शन हमें लेना है बिलो द रेफरेंस लाइन, एंड जो विड्थ है अपना 15 mm यहाँ पे हमें मार्क करना है, और वहां पे जो रिस्पेक्टिव एजेस या कॉर्नर पॉइंट होंगे वहां से भी हमें प्रोजेक्शन लेना है। जब हम टॉप व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन अलग अलग रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो 20x15, 20x15 और 30x15 के। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन 15 mm का, देन सेकंड लाइन, यहाँ पे जो तीन लाइन का कॉम्बिनेशन होगा बट तीनों का पोजीशन अलग है, बट जब हम टॉप व्यू से देखते हैं द अपर वन एंड लोअर वन, ये दो लाइन और ये अपर वन, तीनों लाइन एक लाइन से ही मतलब एक ही पोजीशन में दिखेंगे। तो दैट्स वाई 20 mm, 30 mm एंड 20 mm का एक सिंगल लाइन यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके बाद इस रेक्टेंगल का, और ये साइड, और बाद में ये टॉप व्यू का पूरा स्ट्रक्चर हो गया आउटर रेक्टेंगल। बट यहाँ पे एक्चुअल में तीन अलग रेक्टेंगल है, दो साइड बाय साइड और वन एट द मिडल समवॉट ऑन द लोअर साइड। तो वो पोर्शन भी हमें टॉप व्यू से विजिबल होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है, मतलब तीन रेक्टेंगल, एक, दो एंड तीन। तो यहाँ पे तीन रेक्टेंगल क्रिएट हो गए, ये हो गया अपना टॉप व्यू। तो और जब हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। तो हमें साइड व्यू में हाइट और विड्थ पता चलता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइट का प्रोजेक्शन जो 50 mm का प्रोजेक्शन इधर लेना है साइड व्यू के लिए। देन टॉप व्यू से जो विड्थ है उसका प्रोजेक्शन अप टू 45 डिग्री, और उसके बाद उसको 90 डिग्री से अपवर्ड ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, एंड इट विल क्रिएट द आउटलाइन बॉक्स फॉर द साइड व्यू स्ट्रक्चर। तो साइड व्यू से हम जब देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से हमें ये फर्स्ट वर्टिकल रेक्टेंगल है 15x50 का, मतलब 15 mm बाय 50 mm का, ये विजिबल होगा। और जो विजिबल पोर्शन है हमें उसको क्या करना है, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है। जैसे बॉटम का 15 mm का लाइन, ये हो गया बॉटम का, उसके बाद ये 50 mm का वर्टिकल लाइन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, देन टॉप का अगेन 15 mm, यहाँ पे 15 हो गया, देन 50 mm का अगेन वर्टिकल लाइन ऑफ लेफ्ट साइड, तो ये रेक्टेंगल हो गया क्रिएट। तो ये हो गया इनिशियल ओनली विजिबल स्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ पे और एक चीज याद रखना है, जब भी हम कुछ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यूज ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर हमें ये याद रखना है कि किसी एक व्यू में कुछ इनविजिबल पोर्शन रिप्रेजेंट होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर फ्रंट व्यू से देखते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीटली विजिबल, यहाँ पे इनविजिबल पोर्शन कुछ भी नहीं है। जब हम टॉप व्यू से भी देखते हैं तो भी हम यहाँ पे पूरा तीन रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर कंप्लीटली विजिबल है। बट हम जब साइड व्यू से देखते हैं तो फ्रंट साइड में वर्टिकल रेक्टेंगल है, बट उसके बैक साइड में ये जो डेप्थ वाला स्लॉट है, ओके, रेक्टेंगुलर स्लॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये वाला जो एज है, यहाँ पे एक्चुअल में दो एजेस है, या इस कॉर्नर पॉइंट से और इस कॉर्नर पॉइंट से,
ये दो एजेस ऑफ 20 mm डेप्थ है जो कि साइड व्यू से डायरेक्टली विजिबल नहीं है, तो हमें फ्रंट व्यू से जो डेप्थ वाला पोर्शन है उसका भी प्रोजेक्शन लेना है साइड व्यू में, और ये जो पोर्शन है इट इज एक्चुअली इनविजिबल। ओके, तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट हुआ है तो ये हमें हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो एक्चुअल में जब भी आप ये ड्रॉ करोगे जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा इट इज ए इनविजिबल पोर्शन और इट शुड बी इन हिडन लाइन या डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये हो गया इस सिंपल ऑब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन टू ड्रॉ फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इसमें एक जो करेक्शन है, तो यहाँ पे आपका ये जो लाइन है जो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू से दिखता है इट इज एक्चुअली हिडन, तो ये डैश लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और डैश लाइन का रिप्रेजेंटेशन मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा इट शुड बी लाइक दिस 3 mm 3 mm या डैश स्ट्रक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल में यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे होना चाहिए। ओके, सो इट इज इनविजिबल पोर्शन, और ये कितना लेंथ का होगा, जितना उसका विड्थ या थिकनेस है 15 mm, उस पोर्शन में यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है। एंड एट द लास्ट हमें जस्ट फाइनली उसको नेमिंग करना है। जो फ्रंट व्यू रहेगा यहाँ पे फ्रंट व्यू, ये अपना टॉप व्यू हो गया, ये हो गया टॉप व्यू का स्ट्रक्चर, और ये अपना जो व्यू बन रहा है ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू गिव द नॉमेनक्लेचर आल्सो। इफ पॉसिबल यूज 5 mm पैरेलल लाइंस बिटवीन दैट विद द कैपिटल लेटर, हमें उसका नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल। सो होप सो सभी को समझ में आ चुका होगा बेसिक प्रोसीजर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।